तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राज्यसभा के लिए अपने 2 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल केशवर राव को दोबारा राज्यसभा का टिकट दिया है। दूसरी सीट पर तजस्सुस को खत्म करते हुए केसीआर ने अपने देरीना रफीक और नमस्ते तेलंगाना के एमडी दामोदर राव को उम्मीदवार बनाया है। टीआरएस के उम्मीदवार कल अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। वाज़ेह है कि राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए केसीआर की दख्तर कविता को मैदान में थी। तेलंगाना के वज़राला के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस पार्टी के लीडरों के रवैये को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर हुकूमत के हर मामले पर तनकीद कर रहे हैं। कांग्रेस को हर इलेक्शन में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस लीडर अपनी नाकामियों का मुहासबा करें। कांग्रेस का हाल एक नादान दुश्मन की तरह हो गया है। ఇవన్నీ బోంగా బట్టి విక్రమార్క గారు ఒక విషయం మీరు గమనించాలి. పాపం మీ దురదృష్టం ఏంటంటే నేను మన కౌన్సిల్ కూడా చెప్పలే మీరు, ఎందుకంటే మీరు లేరు, మీరు వెళ్ళిపోయారు. మీకు ఎందుకు ప్రజలు ఓట్లేస్తారో ఇప్పటికి కూడా మీకు విజ్ఞానం వస్తలేదు, మీకు అర్థమైతే లేదు. అసలు ఒక్క ఎలక్షన్ కాదనండి, వరుస బట్టి కంటిన్యూస్గా మీరు ఈవీఎం అన్నారు, బ్యాలెట్ వచ్చే అందరూ కూడా లెక్కలు పడుతుంది. అయినా కూడా మేము అదే మాట్లాడుతుంది. ఏంది నాకు అర్థం కాదు. మాకు ప్రతి ఎన్నికలో మాకు ప్రజలు స్పష్టమైన సందేశం ఇస్తున్నారు, వీళ్ళు ఏం అరిసినా మీరు పడుచుకోకనే మీ దారి మీరు పోండేది. అయినప్పటికీ మా బాధ్యత చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు హరీష్ గారు అదే చెప్పింది, మేము ప్రజలకన్నా చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి మీరు లేవనెత్తిన అంశాలు తప్పకుండా స్పృశించాలి, మాట్లాడాలి, చెప్పాలి. కాబట్టి చెప్పబడుతుంది. రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, ఫలితాలు వస్తూ ఉన్నాయి, అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది. దాన్ని వదిలిపెట్టి మేము ఈ అడగోలు ఆరోపణలను రొడ్డ కొట్టుడు, ఒకటే కథ, ఒకటే పద్ధతి, మీరు ఫెయిల్ అవుతా ఉన్నారు. దాన్ని గుర్తించుకొని రివ్యూ చేసుకొని మీ పార్టీలో సమీక్ష చేసుకొని మారాలి. మీ ధోరణి మారాలి, మీ వైఖరి మారాలి. ఈ పద్ధతులు నడవయి. ఎప్పుడో ఓల్డ్ అప్పులని మాడతారు. లిమిట్స్లో ఉన్న తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం పార్లమెంట్లో 4 మాటలు చెప్పి, ఒకటికి పేపర్లు రావట్టే, కాదు చెప్పబట్టే, అవి చూసుకుంటా కూడా మాట్లాడతారా? ఏం చెప్తామనండి? ఈ పద్ధతి ఇది నాదాన్ దుష్మన్ లాగా అయిపోయింది అధ్యక్ష. మాకు మా పిల్లలు ముద్దువారిపోతారు బయట. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్ట్ చెప్తాను, బాధతో చెప్తాను. ఈ మాట మేము చెప్తున్నాం కూడా మీరు సవరించుకుంటూ లేరు మీరు. సరిగా అది మీ విజ్ఞత. कांग्रेस लीडर भट्टी विक्रमार्का ने वज़राला की जानिब से कांग्रेस को तनकीद बनाने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वज़राला ऐवान में इंतखाबी तकरीर करके चले गए, ओपोजिशन के तजावीज़ सुनने के लिए ऐवान में मौजूद नहीं रहे। कांग्रेस लीडर के रिमार्क्स पर ऐवान में टीआरएस के अरकान ने एतराज़ किया और लीडर ऑफ द हाउस की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर बराए उमूर मुक़न्नना ने कहा कि ऐवान में वुज़रा मौजूद है, ऑपोजिशन अपनी तजावीज़ और मशवरे पेश करे। उन्होंने कांग्रेस लीडर से रिमार्क्स वापस लेने की मांग की। వారేదో వచ్చారు, ఓ స్పీచ్ చెప్పారు, వెళ్ళిపోయారు. మరి నిన్న నేను నిన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రతిపక్ష పార్టీ సభ్యులు మాట్లాడేటప్పుడు ఉండి వారు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఏం సలహాలు చెప్తా ఉన్నారు, ఏం సూచనలు చేస్తూ ఉన్నారు విని వారు సమాధానం చెప్పాలి. కానీ వారు నిన్న లేరు, ఈరోజు కూడా లేరు. వారు మాట్లాడారు, చెప్పాల్సింది చెప్పారు, అనాల్సినవి అన్నీ అన్నారు, వెళ్ళిపోయారు. నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను, విడ్రా చేసుకోవాలి అధ్యక్ష. అట్లా కాదు, విన్నారు, వెళ్ళిపోయారు. ఏంటి అధ్యక్ష, ఏం మానరిజం అధ్యక్ష? అది ఒక సభానాయకుని పట్టుకొని అలా మాట్లాడడం భావ్యమా అండి? మీకు ఇంత సీనియర్, మీరు ఇంత సీనియర్ సార్. గవర్నమెంట్ ఉన్నాం సార్ ఇక్కడ. సార్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ద కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీఆర్ హియర్ వెరీ మచ్ టు లిసన్ యూ. ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ షుడ్ బి హియర్. ఆయన కంపల్సరీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సార్. మేము ఉన్నాం కదా గవర్నమెంట్. మీ 3 గంటలు కూర్చున్నాను సార్. మీ మేనరిజం అట్లా కరెక్ట్ కాదు సార్. అది సభానాయకుని పట్టుకొని మాట్లాడడం. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. तेलंगाना के वज़ीर खजाना टी हरीश राव ने दावा किया है कि अवाम ने बजट कबूल किया है। माशी कसाद बाजार के बावजूद हुकूमत ने एक अच्छा बजट पेश किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बजट से मायूसी हुई है। ప్రజలందరూ కూడా తమ యొక్క ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఈ బడ్జెట్ భట్టి విక్రమార్క గారు చెప్పినట్టు ప్రజలందరినీ కూడా మరి సంతోషపెట్టింది. ఇవాళ నిరాశ అంటూ ఎవరికైనా జరిగిందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరాశ పడ్డది తప్ప ప్రజలు కాదు అధ్యక్ష. ఇవాళ వారు ఇదంతా భ్రమలో చెప్పినారంటున్నారు అధ్యక్ష. ప్రజలను ఇవాళ మేము భ్రమలో పెట్టలేదు అధ్యక్ష.
ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని అమలు చేసే విధంగా ఈసారి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కాకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు ఉన్న భ్రమల్ని మాత్రం ఈ బడ్జెట్ బద్దలు కొట్టింది అధ్యక్ష. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए टीआरएस हुकूमत ने एक और अहम फैसला लिया है। वज़राला केसीआर ने हिफा फिल्टर हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर को खरीदने का फैसला लिया है। एक हेफा फिल्टर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। हेफा फिल्टर को गांधी हॉस्पिटल के अलावा रियासत के दीगर हॉस्पिटल्स में जहां पर कोरोना से मुतासरा मरीजों का तादाद ज्यादा है वहां पर नस्ब किया जाएगा। हेफा फिल्टर की खासियत ये होती है कि वो हवा में मौजूद वायरस को ख़त्म करते हुए साफ हवा फराहम करेगा। असेंबली में वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया कि हेफा फिल्टर को फिलवक्त गांधी फीवर और चेस्ट हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। फिलवक्त इन हॉस्पिटल्स में कोरोना वायरस के लिए खुसूसी आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली में गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल को अपग्रेड करने और आईसीयू कायम करने की मांग की गई। कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल में स्टाफ बढ़ाने और अस्पताल की इमारत पोसीदा इमारत को दुरुस्त करने की मांग की है। वज़ीर सेहत ने गवर्नमेंट अस्पतालों में इलाज की हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 1000 से 1500 लोग आउट पेशेंट्स आते हैं और वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। और साथ ही साथ साबिका में भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बताए थे हर एरिया हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू डालने का, और साथ ही साथ डायलिसिस के भी बारे में बताए थे, मगर वहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है और नर्सेज की ज़रूरत है। और हद तो ये हो गई डॉक्टर साहब, हमारे स्पीकर साहब, मेरे गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बोसीदा हालत में वो कभी भी गिर सकती है। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिसिन की ज़रूरत है। और आने वाला जो समर है उसके अंदर पेशेंट्स के लिए फैंस और कूलर्स की ज़रूरत है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहूँ రాబోయే కాలంలో మరింత గొప్ప మెరుగైన సేవలు అందించడానికి కోసం డెవలప్ చేయాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలు మాకు ఇచ్చిండ్రు. అవి తప్పకుండా నెరవేర్స్తామని చెప్పి మనవి చేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడైతే ఇంకా చాలా సీరియస్ కొరత ఉందో, కనీస సౌకర్యాలు కానీ కనీస హాస్పిటల్ కానీ లేని ప్రాంతాలు ఏవైతున్నాయో అలాంటి వాటి మీద తప్పకుండా ఈ సంవత్సరం ఈ బడ్జెట్ అయిపోయిన తర్వాత मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला ने जनूबी हैदराबाद के इलाकों में पानी की किल्लत की शिकायत की। उन्होंने बताया कि मलकपेट, सैदाबाद और दीगर इलाकों में पानी की सप्लाई कम कर दी गई है। मजलिस के लीडर ने इस मामले को हल करने की मांग की। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मामले को हल कराने की यकीन दहानी कराई। से जो पानी हमको आ रहा है, पानी का इनलेट कम हो चुका है, ट्रांसमिशन वाले पानी बराबर नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मलकपेट ना सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्कि पूरे साउथ जोन के अंदर पानी की किल्लत पैदा होते जा रही है। आने वाले दिनों में शदीद गर्मा है, इसके बाद और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि वो वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के ट्रांसमिशन के और ऑपरेशंस के पूरे अहदेदारों के साथ मिलकर एक मीटिंग करें ताकि पानी की सरबराही हम मुयस्सर कर सके, बराबर पानी की सरबराही कर सके। पानी की बहुत तकलीफ हो रही है, ख़ास तौर के ऊपर सईदाबाद वगैरह के एरियाज़ के अंदर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से ट्रांसमिशन वाले जितना पानी देते थे, पानी कम कर दिए हैं, उसको पानी बढ़ाया जाए और तमाम लोगों को जो पानी की तकलीफ है वो दूर की जाए। जनाब अहमद बिन बलाला साहब, मौजूद रुकन असेंबली ने जो कहा है नोट कर लिया गया अध्यक्ष, उस पर गौर किया जाएगा, जरूर एक्शन लिया जाएगा अध्यक्ष। MIM ने महावीर जयंती के मौके पर तेलंगाना हुकूमत से तातील आम का ऐलान करने की मांग की। रुकन असेंबली मौजम खान ने ऐवान में मामला उठाया। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इस मामले पर गौर करने का ऐलान किया। अप्रैल को अगले महीने में महावीर जयंती आने वाली है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से मेरी जानिब से और मेरी पार्टी की जानिब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एवरी ईयर ऑप्शनल हटाकर स्टेट गवर्नमेंट हॉलीडे इस महावीर जयंती के दिन दीजिए। बिहार हो या छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये सारे स्टेट्स के दिन, स्टेट्स के अंदर महावीर जयंती के वक्त स्टेट हॉलीडे भी है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉलीडे भी है। अध्यक्ष, मौजूद रुकन असेंबली मौजम खान जो बोले नोट कर लिया गया अध्यक्ष, गौर किया जाएगा अध्यक्ष। कोरोना वायरस के पेश नज़र सफाई मुलाजमीन की सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कौमी सफाई कर्मचारी कमीशन की रुकन मंजू दिलेर ने अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर यह बात कही।
मंजू दिलेर ने GHMC दफ्तर में मुलाजमीन तंजीमों के जिम्मेदारों के साथ मुलाकात की और मुलाजमीन के मसाइल से वाकफियत हासिल की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई मुलाजमीन को मास्क, ग्लव्स और दीगर अशिया फराहम किए जाए ताकि वो मुख्तलिफ अमराज से महफूज रहें। आशा वर्कर्स ने माहाना 10,000 रुपये तनख्वाह जारी करने का मुतालबा करते हुए DMR दफ्तर के रूबरू धरना दिया। कोठी पर मुनक्किदा धरने में दर्जनों आशा वर्कर्स खवातीन ने शिरकत की। एहतजाजी खवातीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह से उन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है, जिसके सबब उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। आशा वर्कर्स ने कोठी में वाक़े DMR दफ्तर के रूबरू सड़क पर बैठकर धरना दिया। सुल्तान बाजार पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रामाकुंडम के NTPC में तकनीकी खराबी के सबब बिजली की पैदावार रोक दी गई है। NTPC के मुलाजमीन ने बताया कि 7वीं यूनिट में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है। फिलवक्त 7वें यूनिट को बंद कर दिया गया है, जिसके सबब 500 मेगावाट बिजली का बहरान पैदा हो गया है। तकनीकी खराबी को दूर करने का काम शुरू किया गया है। तकरीबन 15 दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। रामागुंडम NTPC में जुमला 7 यूनिट है, जहां पर जुमला 1800 यूनिट बिजली की पैदावार होती है। समाज के मसाइल के हल में तलबा का अहम रोल होता है। इसी बात को नजर में रखते हुए सेफ्टी क्लब में तलबा और खवातीन तंजीमों को शामिल किया गया है। RTC कल्याण मंडप में इंटरनेशनल वुमेंस डे तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा IG स्वाति लकरा, मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। IG स्वाति लकरा ने बताया कि कॉलेजों में तलबा और तालिबात की सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी क्लब्स कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में सेफ्टी क्लब कायम किए जाएंगे। हल्दी का लोड ले जाने वाली लॉरी का डीजल टैंक फट पड़ा, जिसके नतीजे में लॉरी में अचानक आग लग गई। ये वाकया तेलंगाना के जिला करीमनगर के कोतापल्ली के हुदूद में पेश आया है। लॉरी ड्राइवर सुधाकर और क्लीनर अजय जख्मी हो गए। जख्मियों को मंडल मरकज के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लॉरी में बड़े हल्दी का लोड था। 75 लाख रुपए का नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये हल्दी का लोड निजामाबाद की मार्केट यार्ड को लिया जा रहा था। डीजल टैंक फट पड़ा। NRC, NPR और CAA के खिलाफ विजयवाड़ा में जमीयत उलमा का एक इजलास मुनक्किद हुआ। विजयवाड़ा के प्रेस क्लब में जमीयत उलमा के सदर हाफिज पीर शबीर अहमद की क़यादत में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस दौरान शहरी तरमीमी कानून को बर्खास्त करने का रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत से मुतालबा किया गया। साथ ही NPR को पुराने फॉर्मेट में करवाने जगन काबीना के फैसले का उलमा ने खैर मकदम किया। आज ये जमात, जो जमात बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, वो ये जमात कह रही है कि कागजात बताओ। ये कौन होते हमसे कागजात पूछने वाले? हमने इस मुल्क को सब कुछ दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये इनके जो है ना बड़े लोग जो थे, जो इस वक्त नहीं है, दुनिया से चले गए हैं, उनके ही फॉलोवर लोग हैं ये लोग। उस वक्त तो ये है कि अंग्रेज़ों को लेटर दिए थे कि हम जंग आज़ादी नहीं लड़ी, हमें जेल में मत डालो। इन्होंने माफ़ीनामा लिख के बाहर आए थे। ये उन्हीं के जो है ना फॉलोवर है जो आज हमारे सर पे बैठे हुए हैं। हुकूमत आंध्र प्रदेश जो NPR के सिलसिले में कैबिनेट मीटिंग में तय की है, हम हुकूमत आंध्र प्रदेश के इस कैबिनेट मीटिंग का हम इस्तकबाल करते हैं। लेकिन मसला ये है कि मरकज़ी हुकूमत जो काला कानून लाई है, हम उस कानून के सख्त मुखालिफ हैं। और आंध्र प्रदेश हुकूमत की तरफ से ये बात बताई जा रही है कि यह मसला मुसलमानों का है, जिसकी वजह से हम इस NPR के क़वानीन में तरमीम चाहते हैं। तो हम हुकूमत आंध्र प्रदेश से कहना चाहते हैं कि यह मसला मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यह मसला आंध्रा के 5 करोड़ अवाम का है और हिंदुस्तान के 132 करोड़ अवाम का है। कि NPR का जो है नाफिज करने का फ़ैसला हुकूमत ने कर चुकी है। 1 अप्रैल से NPR का सिलसिला जो है शुरू होगा। तो मैं आप तमाम मुसलमानों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि NPR का जो है हम सब मिलकर जो है इसका बाइकाट करें। इसलिए कि NPR का अगर हम सब मिलकर बाइकाट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में बहुत सारे मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। NPR
इसको किसी भी फॉर्मेट में आंध्र प्रदेश में अगर अमल करने की कोशिश करेंगे, पूरे तौर पे जो है उसका बाइकआउट करते हैं। और इस बाइकआउट को जो है पूरे आंध्र प्रदेश के 13 अजला में मंडल वाइज जो है जाकर वहाँ पर प्रेस मीट लगाकर और लोगों में जो है ये एक पैगाम लेके जाएंगे कि एनपीआर को हर सूरत हाल में जो है हर हाल में उसको बाइकआउट करना है। और हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय किया है कि एनपीआर का बाइकाट करेंगे और इसको हम रिजेक्ट करते हैं। इसमें हम क्या है ताउन नहीं करेंगे। जिस तरह महात्मा गांधी ने ताउन नहीं किया था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, इस तरह हम इस काले क़ानून के ख़िलाफ़ भी ताउन नहीं करेंगे। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSRCP का आज रियासत भर में यौम तासीस मनाया गया। तेलुगु रियासतों में YSP कारकुनों ने तकारीब मुनक़िद की। कड़वा में नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई की, केक काटा और पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर पार्टी के अरकान असम्बली और कारकुन मौजूद थे। आंजहानी YSR के मुजस्मे को फूल माला पेश किया। अमजद बाशा ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी रियासत के हर तबके की तरक्की के लिए कई काम कर रहे हैं। करनूल में YSR कांग्रेस पार्टी के यौम तासीस के मौके पर तकारीब का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिले भर के पार्टी लीडर और अराकीन पार्लिमान और असम्बली ने शिरकत की। पार्टी के जिले सदर ने परचम रस्म कुशाई अंजाम दी और कहा कि पार्टी रियासत की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने जगन हुकूमत की सताइश की और आने वाले इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। तेलुगु देशम पार्टी के MP केनानी की बेटी श्वेता ने विजयवाड़ा के वार्ड नंबर 11 से कॉरपोरेटर के लिए परचम में नामजदगी दाखिल किया है। इससे कबल उन्होंने NTR चौराहे पर मुजस्मा NTR पर फूलमाला पेश किया। वहां से रैली की शक्ल में सेक्रेटरीट पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी राम मोहन राव, साबिक मेयर के कुनेरू श्रीधर और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो विजयवाड़ा शहर को आलमी सतह पर तरक्की देंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के करनूल सदर BV रामैया ने करनूल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 19 के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उन्होंने जोहरापुर के BR अम्बेडकर हाई स्कूल में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर करनूल के रुकन पार्लियामेंट संजीव कुमार, रुकन असम्बली हफीज खान और दीगर मौजूद थे। BV रामैया ने दावा किया है कि बल्दी इंतखाबात में YSR कांग्रेस पार्टी को 100% कामयाबी हासिल होगी और तेलुगु देशम पार्टी का करनूल से सफाया होगा। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान ने इस बात का यकीन दिलाया कि तमाम MPTC, ZPTC और बल्दी इंतखाबात में YSRCP के उम्मीदवार कामयाब होंगे। तेलुगु देशम पार्टी के अलावा कांग्रेस, SDPI, CPM, MIM ने अपने उम्मीदवार मैदान में खड़े किए हैं। YCP के रुकन असम्बली हफीज खान ने वाज़ेह किया है कि जगन हुकूमत ने रियासत में NPR और NRC नहीं करने का फैसला लिया है। उन्होंने अपोजिशन के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। में जो है वे आंध्र प्रदेश स्टेट इज़ द मोस्ट वेलफेयर ओरिएंटेड स्टेट एंड आवर CM इज़ वन साइड वेलफेयर अदर साइड डेवलपमेंट बोलकर चल रहे हैं। तो ज़रूर हमको जो है पूरे वोटर्स के साथ उम्मीद है, आंध्र प्रदेश की आवाम से उम्मीद है कि वो हमको जो है साथ देंगे। एजेंडा सिर्फ जो है पब्लिक का डेवलपमेंट है एंड करनूल सिटी का डेवलपमेंट है। उनका जितने भी जो है रिक्वेस्ट आते, ग्रीवेंसेस आते हैं, उनका जो है सॉल्व करना है। जगन मोहन रेड्डी साहब जब हमको कैपिटल स्टेटस दिए हैं तो आने वाले दिनों में 400-500 करोड़ रुपए भी जो है इस सिटी को आएंगे। ये जो है एक नगर से महानगर बनने वाला है और मेरे को पूरी उम्मीद है हमारे CM साहब से कि वो ये फंड्स देने के बाद में ये सिटी को कैपिटल स्टेटस आ जाने के बाद में एक अलग ही चीज़ का जो है एक उरूज करनूल का आने वाला है। NRC नहीं करते बोल के क्लैरिटी से जो है रेजोल्यूशन पास करे हैं। NPR नहीं करते बोल के क्लैरिटी से कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करे हैं। कल असेंबली में भी वो रेजोल्यूशन पास कर देते। पब्लिक ये समझ रही कि इसमें भलाई नहीं है तो वो काम कहीं को करती कोई भी गवर्नमेंट। हम लोग क्लैरिटी से जो है रेजोल्यूशन दिया है। इतना क्लैरिटी से कोई रेजोल्यूशन जो है जिस तरीके से केरला में दिया है सेम टू सेम वेस्ट बंगाल में उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में दिया गया है। कोई स्टेट इतना क्लैरिटी से NPR के बारे में नहीं बात करा जितना हमारा CM साहब जो है कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करके करे हैं। जिला करनूल के MIM लीडर शेख मोहम्मद मंसूर ने कहा है कि MIM करनूल जिले के 6 मुस्लिम अक्सरियती असम्बली हलकों में बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी और साथ साथ जिले के MPTC और ZPT
इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि YSR कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम अक़लियतों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है और YSR कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अक़लियतों को NPR पर धोखा दिया है। 20 वार्डों से कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, पूरे 20 वार्ड से, तो इसमें से मुस्लिम वार्ड्स को जो है ज़्यादा टारगेट करे हैं। इस वजह के आज YSR पार्टी ये NPR के ऊपर कुछ स्टे लगाए बगैर, उसके ऊपर कुछ फैसला करे बगैर इमीडिएट जो है इलेक्शंस लेके आके आवाम के सामने रख दी। आवाम पहले से ही परेशान है, NPR के ताल्लुक से कुछ वो लोग सोच रहे हैं, तो आप लाके इलेक्शंस रख दिए। तो ठीक है, आप इलेक्शंस रखे, किस वास्ते रखे? आपके फ़ायदे के वास्ते। YSR पार्टी जो है मेरी कॉरपोरेशंस को मैं कब्जा कर लूँगा और फिर उसके बाद जो है NPR को अमल करूँगा। तो ये आपकी सोच को जो है इंशाल्लाह पब्लिक बराबर उसका जवाब देंगे। इंशाल्लाह जो है YSR पार्टी को इस कॉरपोरेशन इलेक्शंस में ख़त्म करेगी। ज़िले के पूरे करनूल बल्दी इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी का सिलसिला जारी है। पर्चे नामजदगी के दूसरे दिन आज CPM पार्टी के उम्मीदवारों ने वार्ड नंबर 33 और 36 से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर पार्टी के लीडर और कारकुन मौजूद थे। उन्होंने जगन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। विजयवाड़ा के NTR हेल्थ यूनिवर्सिटी में कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया है। यहाँ पर अवाम से मौसूल होने वाली शिकायत के मुताबिक घर घर जाकर तिब्बी जांच की जा रही है। दीगर ममालिक से आबाई मकाम लौटने वाले अफराद की खसूसी जांच की जा रही है। इस सिलसिले में महकमे सेहत की जानिब से घर घर सर्वे भी किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का आरोग्य श्री स्कीम के तहत मुफ्त में इलाज करने का ऐलान किया है। 2 रोज़ा स्पेशल ड्राइव के दौरान वॉलंटियर्स, आशा वर्कर्स घर घर जाकर दीगर ममालिक से आने वालों की तफसीलात हासिल करेंगे और उनकी तिब्बी जांच भी की जाएगी। करनूल शहर में कोरोना वायरस से सनसनी मची हुई है। चंद दिन कबल एक खातून उर्दून से करनूल पहुंची थी। तिब्बी जांच के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी जांच की जा रही है। फिलवक्त डॉक्टर्स ने बताया कि उर्दून से लौटने वाली खातून में कोरोना वायरस के मज़बूत निशानात पाए गए हैं। बुखार, सर्दी और गले में तकलीफ की शिकायत के बाद मुतासरा खातून डॉक्टर से रुजू हुई थी। फिलवक्त उस खातून को करनूल के सरकारी दवाखाने में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर्स ने बताया कि खातून के ब्लड और दीगर सैंपल्स लिए गए हैं, पुणे लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून का इलाज किया जाएगा। करनूल में दिशा पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया गया। करनूल रेंज DIGP वेंकट रामा रेड्डी ने नए पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर वीरा पांडेयन, जिला सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस फकीर अप्पा और दीगर शरीक रहे। इस मौके पर DIG वेंकट रामा रेड्डी ने कहा कि खवातीन के लिए बेहतर सहूलियात फराहम है ताकि खवातीन अपनी बात और शिकायत खुलकर बयान कर सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।